Welcome friends to our channel Fundamental Love. This is Atmanti, your guider, your mentor, your friend. हम आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में. ओके, व्हिच इज प्रपोज्ड बाय न्यूटन. ओके, तो व्हाट इज दैट फर्स्ट लॉ, व्हाट इज दैट सेकंड लॉ, व्हाट इज दैट थर्ड लॉ. We are discussing about the first law and second law in previous video in a individual manner. Today is that class which class describe all the 3 laws of Newton. Okay, see here. What is the motions first? No, you know about the motions in my. If you have any doubt, you can go my first video and see here what is that motion. See here, first law of motion. What is that first law say? What is that first law say? Laws of motion. What is that first law say? See here. If a object is in rest, then it will be in rest condition until we give an external force. Okay, that means see here. This is a object. This is in rest. Okay, this is in rest. That means this tendency or that property of that rest will be rest till we don't give any type of external force to it. If we give an external force to this object, then this rest object will tendency to move from here to here. Okay, that means this object says us that this is the condition of rest. This rest condition remain in its rest condition until an external force is not applied. Okay, next come to another conditions. This is a object which is in motion. ये एक वस्तु है जो मोशन में है. हम इसको क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देने. मान लो ये वस्तु है जो एक फोर्स में, एक मोशन में है, एक वेलोसिटी में अकर करता है. उसका बाद हम उसको एक एक्सटर्नल फोर्स इसी डायरेक्शन में नहीं देंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे ही मूव करेगा. सही है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ. 2 कंडीशंस ऑफ फर्स्ट लॉ. दिस इज द कंडीशन 1. रेस्ट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी रेस्ट until an external force is applied. Second condition है ऑब्जेक्ट which is in motions always in motions until an external force is not applied. So these are 2 laws of motions. Sorry, these are 2 parts of first law of motions. Here is your first law of motion. Okay, see here an example. If a object, मान लो एक फुटबॉल यहाँ पर है जो रेस्ट में है. आप उसको जितने बार देखोगे, जो भी उसको सेट कर लो, ये कभी मूव नहीं होगा, कभी भी मूव नहीं होगा जब तक आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स, एक की फोर्स मान लो, एक कुछ भी मान लो. कभी कभी खुद से खुद यहाँ से यहाँ हो जाता है, लेकिन खुद से खुद नहीं होता है. इसमें एयर का एक फोर्स आता है, एयर का एक प्रेशर आता है जो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाता है. By default we can say that a external force is required to move a object from the rest condition to get in motion position. That means we can say that a rest comes to its change to its state to perform the motions require a external force. Similarly, a motion object wants to its rest condition also requires an external force. Example, ए मान लो एक किक मारने के बाद ये बॉल जो फुटबॉल है जो ये मूव करने लगा, ये मूव करने लगा. मूव करने के बाद क्या होगा, ये कहीं से कहीं तो एक स्टॉप होगा. तो हमको क्या पता है, हमको पता चला कि मूव कर लिया, फोर्स डिक्रीज हो गया, ये स्टॉप हो गया. ऐसे नहीं होगा. फोर्स डिक्रीज कैसे होगा, ये तो हम कुछ 10 न्यूटन का फोर्स दे दिया, तो डिक्रीज कैसे होगा. डिक्रीज कैसे होगा, जब एक डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड से फोर्स आएगा तो डिक्रीज होगा. तो देखो अपोजिट साइड से फोर्स कैसे आया, तो हम तो एक क्या फुटबॉल को किक किया, कोई भी प्लेयर उसको ब्रेक नहीं किया, कैसे हो गया. एक फोर्स ऐड करता है हमारा ग्राउंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. क्या, फ्रिक्शनल फोर्स.
ये जो फ्रिक्शनल फोर्स और द एयर फोर्स, उसके बाद और एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है, उसका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों क्या करता है, उसको ब्रेक में आने के लिए और रेस्ट में आने के लिए मजबूर किया। इसीलिए एक्सटर्नल, हियर दैट इज द थ्री एक्सटर्नल फोर्स व्हेन देयर इज नो मस्कुलर फोर्स, बट दिस बॉल, here is the condition of motion, here is the condition of rest, it changes to conditions of motion to rest by these three external forces. Okay, this is the first law of motion says, and first law of motion states also, this is the law of inertia. Yes, what is the, this condition is known as the inertia of rest. This condition is known as the inertia of motion. A rest object always tend to be in rest. This is the law of inertia, inertia of rest. The object or a motion object, is in motion, so always tend to be in motion. It is known as the inertia of motion. Okay, that means that first law derives the term inertia. Here is your definition of inertia. Okay, complete. Now this is the condition, this is the condition of inertia of rest, this is the condition of inertia of motion. Now comes to second law of motion. वीडियो को एंड तक देखना है, okay? Second law of motion. What is that second law of motion say? Second law of motion says the actually second law of motion gives the definitions, gives the formula for force. We all know that force is equal to mass into acceleration. This is proposed by second law of motion. This is proposed by second law of motions. Okay, that second law of motions have a unique term. This is called momentum. This is called momentum. Momentum is a unique term or important term related with the second law of motion. So what is that momentum say? Momentum says that momentum is equal to mass into velocity. Momentum is mass into velocity. देखो मोमेंटम को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? मान लो ये एक ट्रक है और ये एक बड़ा व्हीकल है, व्हीकल 1 है जो मास में ज्यादा है, एक छोटा सा व्हीकल है जो मास में कम है, उसका स्पीड मान लो 0 है, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट वन इज ऑल्सो 0. जब ये आकर इससे टकराता है तो उसका कुछ कम ही होगा मोमेंटम. क्यों? देखो m2 इंटू मान लो उसका वेलोसिटी कुछ ही है v1 v2 मान लो, तो क्या होगा, उसका कुछ मोमेंटम है लेकिन उसका कुछ मोमेंटम यहाँ पर नहीं है, उसका 0 है, उसका मान लो 100 है. तो क्या होगा ये दोनों का, ये जब दोनों टकराता है तो उसका भी कुछ नुकसान होगा, उसका ज्यादा नुकसान होगा, उसका कम नुकसान होगा. इसका मोमेंटम 0 है क्योंकि उसका मास 0 है. देखो सॉरी वेलोसिटी 0 है, उसका मान लो वेलोसिटी 0 है, m1 इंटू v1 तो यहाँ पर 0 है, तो फास्ट का 0 हो गया, उसका तो मान लो ये 10 है, ये भी 10 है, तो 100 हो गया. तो उसका 100 है, उसका 0 है, फिर भी जब वो दोनों टकराता है उसका थोड़ी सी चोट पहुंचती है उसको. क्यों? क्योंकि ये जो दोनों है उसमें मोमेंटम यहाँ पर 0 है, 100 है, टकराने के बाद इसमें कुछ मोमेंटम शिफ्ट हो गया और वो मूव करने लगा. मूव नहीं करेगा लेकिन उसको टेंड टू मूव होगा, इसलिए उसका मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जिसके लिए ये फिर से उसको कुछ फोर्स रिटर्न दे देगा, इसलिए उसका कुछ चोट आएगा कि जो भी होगा उस छोटी वाली को होगा और बड़ी वाली को भी होगा, जरूर होगा. उसका बाद आती है जब उसका मोमेंटम मान लो 100 है, इस डायरेक्शन में है, इसका मोमेंटम भी कुछ है, उसका मास भी कुछ मान लो 1 न्यूटन है और उसका स्पीड भी 100 है,
तो कितना हो गया 10,000 उसका मोमेंटम हो गया। जब ये 10,000 मोमेंटम ये 100 मोमेंटम वाला से क्या होगा आपस में भिड़ लेगा, तो क्या होगा ये 10,000 ये 100 है, फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। 100 में आ जाने के बाद कितना हो गया, ईच का मान लो 5050 हो गया। कितना हो गया 5050 हो गया, सॉरी ईच का 5050 हो गया, लेकिन उसका मास ही जो है वो ये मास में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। किसमें डिफरेंस आएगा, आएगा तो वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसके लिए उसका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा इस व्हीकल को जो मास में कम है, जिसका मोमेंटम कम है। इसलिए एक ही बात याद रख लो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ का एक बड़ा टर्म मोमेंटम। मैंने आपके लिए इसमें कुछ डाउट है तो चलो मेरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को चल लो, इसमें वेरी ब्रीफली डिफाइन हुआ है ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, वेरी वेरी इजीली वेरी। ये जो फॉर्मूला इसको हमें डिफाइन करते इधर एलाबोरेट करता हूँ इस वीडियो में। चलो okay, if you have any doubt then go for my previous videos which is only reflected on second law of motions, you can check from there. Okay, then comes to third law of motion. This is the overall class of three laws. Third law of motion, ये लॉ क्या करता है, ये लॉ हमारा सुभाष चंद्र बोस जी को फॉलो करता है, क्योंकि ये क्या बोलता है, देखो ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया अप्लाइड फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, तो देखो आप मान लो 10 न्यूटन ये ऑब्जेक्ट को दे दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको फिर से 10 न्यूटन रिटर्न करेगा, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। क्या हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन में। दैट मीन्स सी हियर, इफ वी दिस पार्ट देखो, I slap on that wall, then what happened? I have also some pain. Why? Because after slapping, if I gave 20 Newton force towards the wall, then that wall also gives same 20 Newton of force towards my hand, but in opposite direction. If this is going in the east direction, this is goes in the west direction. So this is the difference. No, this is the rule says by the third law of motion. That means third law of motion says that every actions are equal and opposite reactions. Equal matlab equal in magnitude but in direction is this is opposite. Okay, this is all about the third law of motion. This is the a simple class on law of motion. Okay, if you have any doubt then check my previous video. Thank you. Please like, share and subscribe.